Nestled in the lap of Dalma Hills in the southeastern part of India's forest state, Jharkhand, is the beautiful city of Jamshedpur. Founded by Jamshedji Tata in 1908, the city is a spectacle of the intersection of urban planning, industrial development and culture. Established in the year 1953 with only 6 students, Jamshedpur's Women's College has charted its course through history with accomplishments and pride. The small step by founder Mrs. Perency Mehta has evolved from a 2-room college to the flagship institution for women's higher education in not only Jamshedpur but across Jharkhand. Under the strong leadership of the towering personalities over the decades, the college has flourished and provided opportunities for generations of women of Jharkhand. More recently, Jamshedpur Women's College has now been designated as a university and has been awarded Grade A by NAAC under the leadership of Professor Dr. Shukla Mahanti. With a strong legacy of progressive education, Jamshedpur Women's College boasts of several new age laboratories for various departments and subjects, including computers, physics, chemistry, biotechnology, botany, psychology, and geography. The various departments, science, education, arts, and social sciences are all run by eminent faculty and members of teaching staff who truly believe in the potential of education to empower women. The campus library is a melting pot of knowledge, new and old, and has been witnessed young girls turning into confident, strong, educated women. The collection of books, research, periodicals, and archives at the Perency Mehta Library rivals some of the best colleges in the state. It is the relentless work of non-teaching staff that keeps the wheels of the institution running truly, ensures strong infrastructure and smooth running of operations. At Jamshedpur Women's College, development is understood to be holistic. In addition to academic competitions, the young women achievers excel at various extracurricular activities, academic debates, performance, arts, yoga, and sports. As the college almost wraps up its 6th decade, the 7th holds a sweet promise like never before. जमशेदपुर विमेंस कॉलेज के तृतीय ग्रेजुएशन डे समारोह में महामहिम राज्यपाल सह झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का शुभागमन हो चुका है तथा अकादमिक शोभा यात्रा प्रारंभ हो रही है। अकादमिक शोभा यात्रा में महामहिम राज्यपाल महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय कुलपति कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा प्रोफेसर डॉक्टर गंगाधर पांडा जी, आदरणीय प्राचार्य भूतपूर्व कुलपति कोल्हान विश्वविद्यालय प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला महांती जी, सभी संकायाध्यक्षगण, सभी विभागाध्यक्षगण, सभी संकाय सदस्यगण, संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण के संचालक ग्रेजुएशन डे समारोह के मंच की तरफ अग्रसर हो रहे हैं।
अब हम सभी राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मैं अब जमशेदपुर विमेंस कॉलेज की प्राचार्य एवं कोल्हान विश्वविद्यालय की भूतपूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला महांती जी से अनुरोध करती हूँ कि पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर माननीय अतिथिगण का अभिवादन करें। प्राचार्य महोदया से अनुरोध है कि महामहिम कुलाधिपति एवं माननीय कुलपति महोदय के कर कमलों से दीप प्रज्वलन संपन्न कराएं। अब जमशेदपुर विमेंस कॉलेज के महाविद्यालय गीत की प्रस्तुति की जा रही है। ज्ञानशील संस्कृतियालय जमशेदपुर महिला महाविद्यालय। ज्ञानशील संस्कृतियालय जमशेदपुर महिला महाविद्यालय। नारी शक्ति संकल्प प्रदाता विश्व चेतस ज्ञान विधाता। कर्म प्रबोधक दर्शन दाता नारी हो नवयुग निर्माता। सुरभित हो नव पुष्पालय जमशेदपुर महिला महाविद्यालय। ज्ञानशील संस्कृतियालय जमशेदपुर महिला महाविद्यालय। लौह धरा का गुरुवालय जमशेदपुर महिला महाविद्यालय। ज्ञानशील संस्कृतियालय जमशेदपुर महिला महाविद्यालय। मैं संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण महामहिम राज्यपाल सकुलाधिपति महोदया से तृतीय ग्रेजुएशन डे समारोह को प्रारंभ करने की कृपापूर्ण अनुमति प्राप्त करती हूँ और आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला महांती जी से अनुरोध करती हूँ कि स्वागत संबोधन करते हुए महाविद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। नमस्कार, जोहार। आज जमशेदपुर विमेंस कॉलेज के तृतीय ग्रेजुएशन डे समारोह के इस महत्वाकांक्षी एवं दूरदर्शी भव्य वर्चुअल आयोजन के अवसर पर संबोधित करते हुए मैं उत्साहित और आशान्वित हूँ। इस अवसर पर हमारे बीच महामहिम राज्यपाल सह झारखंड के राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं विमेंस कॉलेज परिवार की तरफ से महामहिम आपका बार बार स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपका आशीर्वाद और स्नेह हमें बिना शर्त सदैव मिलता रहा है। इसके लिए हम खुद को
सौभाग्यशाली पाते हैं। हम संकल्पबद्ध हैं और महामहिम को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आपके आत्मीय मार्गदर्शन में इस संस्था को अकादमिक जगत में एक कैनन के रूप में स्थापित करने में जी जान लगा देंगे। इस शुभ अवसर पर हमारी पितृ संस्था कोल्हान विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर गंगाधर पांडा जी की महनीय उपस्थिति से हम कृतज्ञ हैं। आपका स्वागत करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। आपके वैदुष्य तथा अनुभव संपन्न नेतृत्व का लाभ हमें लगातार मिला है, इसके लिए हम सदैव ऋणी हैं। पूरे कॉलेज परिवार की तरफ से मैं इस आयोजन में हृदय से आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ हमारे जितने टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ हैं जो अपने अपने घरों से या कहीं से भी हमें आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं स्वागत करती हूँ अपने सारे डीन्स के, HODs के, सारे फैकल्टी मेंबर्स के, जो हर जगह हर समय हमारे लिए तत्पर रहे और इस आयोजन में उन्होंने बहुत बहुत साथ दिया और उसी का ये फल है कि आज ये इतना सफल आयोजन हम कर पाए। मैं स्वागत करती हूँ हमारे सारे मीडिया पर्सन्स का, जिन्होंने हमेशा इस सारे कार्यक्रमों को, जमशेदपुर विमेंस कॉलेज के कार्यक्रमों को और स्पेशली इस वर्चुअल कार्यक्रम का बहुत पहले से पेपर में देकर हमें बहुत घर घरों तक पहुंचाया। मैं सभी लोगों का स्वागत करती हूं जो अपने अपने घरों से और YouTube में हमें देख रहे हैं और हमारे जमशेदपुर विमेंस कॉलेज का शायद ये सर्वप्रथम झारखंड में वर्चुअल ग्रेजुएशन डे हो रहा है। जो हमारी छात्राओं का भी मैं स्वागत करती हूँ, जो हमारी छात्राएं अपने अथक परिश्रम और निष्ठा और समर्पण से आज उपाधि, स्वर्ण पदक एवं प्रमाण पत्र प्राप्त करने जा रही हैं। अपनी होनहार बेटियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ कि आज मैं ये भी चाहती हूँ कि उनके अपने ही घर आंगन में आज उनका स्वागत है, क्योंकि वह कॉलेज के अंदर नहीं आ पाई और अपने अपने घरों से आज इस कार्यक्रम को देख रही हैं और अपने उपाधि को ग्रहण करते हुए खुद को देख रही हैं। ये वास्तव में एक अविस्मरणीय समय होगा जब खुद को ही लेते हुए, पदक लेते हुए और सर्टिफिकेट लेते हुए खुद अपने ही देखें टीवी पर। मैं उन्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जीवन की हर बुलंदी उन्हें सहज ही उपलब्ध हो। ये कामना करते हुए मैं सबको भावुक पा रही हूँ और याद करना चाहती हूँ कोल्हान विश्वविद्यालय को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन लोगों ने भी हमारा हमेशा योगदान दिया, चाहे वो डिग्री बनाना हुआ, सर्टिफिकेट बनाना हुआ या वर्चुअल हम लोग वहाँ पर गए और काम किए उसके लिए हो। मैं सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करती हूँ जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं आज उन महान और पवित्र आत्माओं को, जिन्होंने आज से करीब 70 साल पहले 1953 में 6 लड़कियों के साथ इस कॉलेज को शुरू किया था, उस समय सोचा भी नहीं गया होगा कि आज हमारा ये कॉलेज 9000 बच्चियों के साथ है। ना केवल BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom है, बल्कि 14 वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्स हैं, जिसमें NCT के द्वारा B.Ed, M.Ed, B.Ped और AICT के द्वारा MBA का कोर्स भी है। साथ ही जितने भी हमारे UGC के, चाहे वो BCA हो, BSc IT हो और डाइटेस्टिक्स का प्रोग्राम हो, सारे प्रोग्राम हमारे यहाँ चलते हैं। 1953 में स्त्रियों की शिक्षा के बारे में बहुत कम लोग सोचा करते थे। ये सोचना मात्र ही इतना अधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि इस सोच ने समाज की सदियों की जकड़ी और पिछड़ी मनोवृत्ति पर चोट की थी। स्त्री को उपभोग की वस्तु मानने वाले दकियानूशी समाज का अमूल चूल बदलने की कवायद इस सोच में समाहित थी, ऐसा हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि स्त्रियों को अपनी अस्मिता के लिए कितनी लंबी और कितने स्तरों की लड़ाई लड़नी पड़ी है। जमशेदपुर विमेंस कॉलेज की कहानी में स्त्री अस्मिता का जिंदा इतिहास है। मैं इस अवसर पर इसके संस्थापकों, संरक्षकों, क्रमशः सर जे गांधी, भारत रत्न JRD टाटा, लेडी रोशन जहांगीर गांधी, श्री MD मदन,
श्री RS पांडे, श्री रूसी मोदी और प्रोफेसर AD सिंह की पावन स्मृतियों को नमन करती हूँ। इन लोगों ने इस कॉलेज की स्थापना के जरिए लड़कियों के सपनों को साकार होने की एक भरोसेमंद जगह मुहैया कराई। आज के दिन मैं इस कॉलेज की संस्थापक प्राचार्य डॉक्टर पेरीन सी मेहता को भी याद करना चाहूँगी, जो कि यहाँ न केवल प्रथम प्रिंसिपल थी, प्राचार्य थी, बल्कि उनके द्वारा बहुत सारे नए कार्यक्रम शुरू किए गए थे। 6 छात्राओं से शुरू हुआ ये महाविद्यालय धीरे धीरे बढ़ता गया और आज हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये सर्वमान्य सत्य है कि स्त्री की मुक्ति स्त्री के सशक्तिकरण में ही है और स्त्री शिक्षा स्त्री सशक्तिकरण का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। लेकिन शिक्षा का तात्पर्य श्री अक्षर ज्ञान और परीक्षाएं उत्तीर्ण करना ही नहीं, बल्कि व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास ही वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य है। इसलिए जमशेदपुर विमेंस कॉलेज ने होलिस्टिक अप्रोच के साथ एकेडमिक पाठ्यचर्या की विकसित की है। कला, विज्ञान, वाणिज्य, समाज विज्ञान के परंपरागत पाठ्यक्रमों के साथ हमने वोकेशनल और प्रोफेशनल पाठ्यक्रम तो अपनाया ही है, ताकि छात्राएं शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी सुगमता से प्राप्त कर सके। BA, MAd, BBA, MBA, MLE, मास कॉम जैसे वोकेशनल पाठ्यक्रमों के अलावा और बहुत सारे पाठ्यक्रम यहाँ चलते हैं और हाल में ही हमने योगा में मास्टर्स डिग्री का पाठ्यक्रम शुरू किया है, जो पहले से चले आ रहे डिप्लोमा कोर्स में आगे की कड़ी है। आने वाले दिनों में हम योगा में रिसर्च का पाठ्यक्रम भी संचालित करने की प्रक्रिया में है। मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहती हूँ कि हमारी योगा की छात्रा ने पिछले वर्ष आयोजित योगा की अखिल भारतीय प्रतियोगिता में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। कोविड-19 के समय में हमारी यह छात्राएं YouTube वीडियो के माध्यम से लोगों को घर में रहते हुए सुरक्षित ढंग से योग करने और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दे रही थी। उनका यह कार्य सराहनीय है और ज्ञान को समाज के कल्याण की दिशा में चरितार्थ करने के वाला है। कॉलेज ने पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार से MOU किया है, जिससे हमें योग के पाठ्यक्रम को सार्थक दिशा देने में निरंतर मार्गदर्शन मिल रहा है। मार्शल आर्ट और छऊ नृत्य में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम, संगीत में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के साथ साथ बैचलर इन फिजिक्स एजुकेशन का पाठ्यक्रम भी यहाँ है। साथ ही हमारे पास 2 ऐसे हॉस्टल भी हैं जिसमें रहकर हमारी छात्राएं पढ़ाई कर सकती हैं। महामहिम राज्यपाल महोदया और माननीय कुलपति जी की आत्मीय कृपा दृष्टि से जमशेदपुर विमेंस कॉलेज ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ऑटोनोमस संबंधी वर्ष 2018 की नियमावली के तहत 11 विषयों में MPhil एवं PhD के पाठ्यक्रम संचालित करने की प्रक्रिया शुरू की है। यह कदम महिलाओं की उच्च शिक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। झारखंड में उच्च शिक्षा में जो ड्रॉप आउट है के आंकड़े मिलते हैं, उसमें सबसे अधिक प्रतिशत लड़कियों का ही है। यह एक चिंता का विषय है, लेकिन विमेंस कॉलेज ने MPhil PhD पाठ्यक्रमों के संचालन से इस ड्रॉप आउट को काफ़ी हद तक कम करने की दिशा में अपने कदम उठाए हैं। यह उद्देश्य महामहिम और राज्य सरकार की प्राथमिकता में रहा है कि झारखंड में विशेषकर महिलाओं की उच्च शिक्षा को कैसे एक बेंचमार्क के रूप में स्थापित किया जाए, कैसे उनकी उच्च शिक्षा सिर्फ डिग्री बांटने वाली औपचारिक संरचना से बाहर निकले, कैसे उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसर राज्य की मातृ जनसंख्या को एक सक्षम और कुशल मानव संसाधन के रूप में तैयार करने के केंद्र बने। इसके लिए उच्च शिक्षा में एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी को सुनिश्चित किया जाना अपरिहार्य है। हमें उल्लेख करते हुए अपार गौरव हो रहा है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के रूप में आई महत्वाकांक्षी योजना को हमारे राज्य में पूरी तत्परता से अपनाया गया और बालिकाओं को उच्च शिक्षा के बेंचमार्क को सभी के सहयोग से साकार करने हेतु इस जमशेदपुर महिला महाविद्यालय को जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया गया है। इससे जल्द ही यह संस्थान झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश तक की छात्राओं के उच्च शिक्षा का एक विश्वसनीय केंद्र बनकर उभरेगा।
और महामहिम तथा राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को पूरा करने में अपनी अग्रणी भूमिका सुनिश्चित करेगा। हमारे जमशेदपुर विमेंस कॉलेज में हमारे एनसीसी और एनएसएस के बच्चे भी काफ़ी कार्य करते हैं और उन्होंने आरडी परेड में भी जाकर देश विदेश में जाकर अपना हमारे महाविद्यालय का नाम भी रोशन किया है। खेल कूद में भी हमारी छात्राएं बहुत आगे हैं और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर में हमारी छात्राएं खेल कूद में आगे जाती हैं और JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ जमशेदपुर विमेंस कॉलेज का MOU है, इसलिए हमारी छात्राओं को वहाँ पर भी खेल कूद की सुविधा मिल जाती है। हम आंकड़ों पर गौर करें तो विगत 4 वर्षों में झारखंड राज्य के सकल नामांकन अनुपात में आशातीत वृद्धि हुई है। 2012-13 में सकल नामांकन अनुपात 10.1 था, 2015-16 में बढ़कर 15.4 हुआ, 16-17 में 17.7 हुआ और आज 18-19 में 18.7 हो गया। और इसमें भी लड़कियों के नामांकन का अनुपात की वृद्धि लड़कों के अनुपात से काफ़ी कम है। यह आंकड़ा और बेहतर होगा जब जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय भी जल्दी ही गुणवत्ता एवं किफ़ायती उच्च शिक्षा के लिए राज्य की बेटियों के दूसरे राज्यों में जाने का नियंत्रण कर सके। अगर हम अपनी बेटियों को दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ने से पढ़ने जाने के लिए नहीं देकर अपने ही कॉलेज में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं तो कल को हमारी कोई बेटी इस जमशेदपुर को छोड़कर बाहर जाना नहीं चाहेगी। मुझे ये उल्लेख करने में खुशी हो रही है कि कोरोना महामारी के चलते उपजे तनाव और विभ्रम के माहौल में भी जमशेदपुर विमेंस कॉलेज ने अपनी छात्राओं को हर तरह से सहयोग करने की योजना में सफलता पाई है। प्रत्येक संकाय और प्रत्येक विभाग की छात्राओं से व्यक्तिगत स्तर पर मैंने ऑनलाइन संपर्क किया, उनकी काउंसलिंग की गई और करीबन 9000 छात्राओं से हमने ऑनलाइन बात की। उन्हें खुद को मजबूत और स्वस्थ मानसिक रूप से भी रखने के अलावा परिजन का भी ध्यान रखने का दायित्व तो हमने उन्हें दिया और लगातार उनको प्रेरित किया कि उनमें सकारात्मक परिणाम हमें मिलने भी लगे। बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब भी दिया। छात्राओं ने ऑनलाइन परीक्षाएं दी, ऑनलाइन पढ़ाई की और इतना ही नहीं, हम लोगों ने अपने कॉलेज में एक कोविड सेल बनाया है जो हमारा वेबसाइट पर है और हमारे वेबसाइट को हमने नोटिस बोर्ड की तरह व्यवहार करने के लिए लड़कियों को सिखाया और हर नोटिस, हर तरह की बातें हमारे वेबसाइट पर रही, जिससे हमारी छात्राओं को इस कोविड पीरियड में भी कभी महसूस नहीं हुआ कि हम अपने कॉलेज से दूर हैं। इस कोविड पीरियड में हम लोगों ने करीबन 25 वेबिनार किए, 2 फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम किए, जिसमें हमारी छात्राओं ने और हमारे शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस तरह हमारा कॉलेज प्रशासन इस कोविड पीरियड में भी कहीं भी अपने एकेडमिक क्रियाओं से दूर नहीं रह गया। शिक्षक शिक्षिकाओं के करियर के विकास के लिए ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम संचालित किए गए। सभी विभागों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार संचालित किए गए और इस तरह से स्थानीय विद्वान, सामाजिक चिंतक, जनप्रतिनिधियों के भी महत्वपूर्ण व्याख्यान कराए गए और इस ज्ञान के आदान प्रदान की निरंतर बनी रही, बल्कि साथ ही साथ अकादमिक दुनिया और सामाजिक जीवन के बीच की खाई को भी काफ़ी हद तक पाटने का प्रयास हुआ। हमने डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर खरीदकर कस्टमाइज कराया ताकि ऑनलाइन कक्षाएं अच्छे तरह से जारी रह सके। कोई भी छात्रा इस कठिन समय के बावजूद शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं रहे, ये हमारे कॉलेज का सबसे बड़ा ध्येय था। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि कोल्हान विश्वविद्यालय के निर्देशों का सतह अनुपालन करते हुए विमेंस कॉलेज के शिक्षक शिक्षिकाओं ने सर्वाधिक वीडियो लेक्चर अपलोड किए। इससे परीक्षा से पर्याप्त समय पहले पाठ्यक्रम पूरा करने में सहयोग मिला और हम लोगों ने समय पर परीक्षा भी ले ली, ऑनलाइन परीक्षा ली और सारे रिजल्ट्स भी निकाल गए। मैं एक और बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ऑनलाइन इस कोविड पीरियड में ऑनलाइन कैंपस सिलेक्शन भी हुआ और हमारी छात्राओं का समय से रिजल्ट निकलने के कारण विप्रो, TCS, जेनपैक, टाटा स्टील और बहुत सारी ऐसी कंपनियों ने इन्हें हमारे बच्चों को लिया और हमारे बच्चे आज अपने घर से ही नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनकी पोस्टिंग भी शीघ्र ही हो जाएगी। हमारे संस्थान और IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, NIT जमशेदपुर, NML जमशेदपुर से
एकेडमिक एवं शोधगत अनुबंध की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। जल्दी ही हम गुणवत्तापूर्ण और उच्च मानक के एकेडमिक आदान प्रदान से अपनी बच्चियों को लाभान्वित कर सकेंगे। कॉलेज में विकीमीडिया फाउंडेशन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के वित्तीय सहयोग से हिंदी विकी स्रोत पर महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित हुई, जिससे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रौद्योगिक आयामों तथा अकादमिक नवाचार की दिशा में मजबूत पहलकदमी हुई। और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यशाला भी हमने आयोजित की। इससे हमारी छात्राएं स्थानीय भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, देशज और जनजातीय विरासतों के संरक्षण के लिए काम करने वाली स्वयंसेवकों के रूप में चयनित हुई। इन सभी कवायदों के साथ कॉलेज ने छात्राओं के रोजगार को लेकर भी पूरी प्रतिबद्धता से अपना काम किया। आज हमारी बच्चियों ने बेहतर वेतन पैकेज पर सम्मानजनक और आकर्षक रोजगार हासिल करने में सफलता पाई है। कॉलेज के प्लेसमेंट सेल को पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन में कर दिया गया है। हमने इसी एकेडमिक वर्ष से यूजीसी लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क योजना के तहत स्नातक एवं स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रमों को अद्यतन कर दिया। AISHE की रिपोर्ट में BA पाठ्यक्रम में अखिल भारतीय स्तर में सर्वाधिक नामांकन होने का आंकड़ा है। झारखंड में भी लगभग यही स्थिति है। विमेंस कॉलेज में संख्यावार लगभग एक रूप नामांकन की स्थिति है। मैं एक बात और भी अपने महामहिम को बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने अपने जितने भी कोर्सेज में, पाठ्यक्रमों में झारखंड की संस्कृति, झारखंड की भाषा, झारखंड के भूगोल, झारखंड के इतिहास, इन सारी चीज़ों का समावेश किया है ताकि हमारी छात्राओं को झारखंड के बारे में भी अपने विषय में ज्ञान हो। फिर भी ऐसा पाया जाता है कि हमारे आर्ट्स के छात्राएं प्राय अनस्किल्ड रह जाती हैं। ऐसी छात्राओं को ध्यान में रखते हुए प्लेसमेंट ड्राइव्स के समांतर ही विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति क्षमता, भाषाई प्रवीणता तथा संप्रेषण कला के विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। छात्राओं के व्यक्तित्व विकास के लिए एक्सेल योजना के तहत टिस और IL और FS के तहत 7 MOUs भी कराए गए हैं। इससे हमारी छात्राओं के अभिव्यक्ति क्षमता में विकास हुआ है और वे इस प्रतिस्पर्धी दौर में भी मजबूती से आगे बढ़ते हुए बेहतर रोजगार के अवसर पा रही हैं। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की विगत वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में सकल नामांकन अनुपात के लिहाज से छात्रों की अपेक्षा छात्राओं की संख्या दोगुनी से भी अधिक बढ़ी हुई है। और अगर हम देखें तो झारखंड एक सशक्त प्रमाण होगा कि जनजातीय छात्राओं का नामांकन दर में गुणात्मक बढ़ोतरी है। झारखंड की उच्च शिक्षा में नामांकन के संदर्भ में जेंडर रेशियो की दृष्टि से यह बेहतरीन परिणाम है। जाहिर है कि जेंडर रेशियो की दृष्टि से इस बार भी विमेंस कॉलेज में हुए नामांकन एक बेहतर तस्वीर बनाने में कामयाब हुए हैं। उच्च शिक्षा की पहुंच सभी तक हो, इसके लिए कॉलेज ने कुछ विभागों में सामान्य पाली के अलावा द्वितीय पाली में भी नामांकन लिया है निर्णय कि उसमें भी हम लेंगे, ताकि हमारी छात्राओं का सभी छात्राएं जो पढ़ने की इच्छुक हैं उनको यहाँ पर नामांकन मिल सके। नामांकित छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, अध्ययन तथा उन्नति का समान अवसर भी उपलब्ध हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए कॉलेज ने महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। पूरे परिसर को मुफ्त वाईफाई सुविधा से लैस कर दिया गया है। क्लाउड एनेबल्ड डिजिटल लैंग्वेज लैब की स्थापना भी कराई गई है। समग्र रूप से देखें तो मानव संसाधनों की युवा समर्थ, कर्मठ, दक्ष तादाद तैयार करने में कॉलेज प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन की एक पारस्परिक स्वस्थ श्रृंखला बन रही है। आज हम आश्वस्त हैं कि यहाँ एक प्रबुद्ध और प्रतिबद्ध एजुकेशन एंड स्किल इकोसिस्टम का निर्माण हुआ है। मैं जमशेदपुर विमेंस कॉलेज के इतिहास में आज सुनहरा अध्याय जोड़ने के लिए पुनः महामहिम राज्यपाल महोदय माननीय कुलपति जी का स्वागत करते हुए आज अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।
अब मैं कोल्हान विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर गंगाधर पांडा जी से उनके उद्बोधन के लिए सादर आग्रह करती हूँ। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमारी भारतीय परंपरा में जब वैदिक परंपरा का आलोचन हम करते हैं, हम पाते हैं कि हमारे भारतवर्ष में अनेक महिषी महिलाएं जन्म लिए हैं। उनमें गार्गी, मैत्री, लोपमुद्रा आदि प्रमुख है। जब पौराणिक काल का हम आलोडन करते हैं तो एक उदाहरण के स्वरूप आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि सावित्री इतनी बुद्धिमती थी कि यम राजा से केवल एक ही वर से वो अनेक वरों को प्राप्त कर लिया। उनका वर था कि हे यमराज, अगर आप मेरे प्रति कृपालु है तो ऐसा वर दीजिए कि मेरे ससुर अपने पौत्र को सिंहासन पर बैठते हुए देख सकें। ये वर से संतुष्ट होकर के यम जब तथास्तु कर देते हैं तब उनको अनेक वर एक वर के साथ मिल जाता है। उनके ससुर जी अंधे थे, उनको दृष्टि मिल जाती है। पुत्र प्राप्त करने हेतु पति चाहिए, इसलिए पति जीवित हो जाते हैं और पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल जाता है। उनका राज्य शत्रु राज्य ने हर लिया था, उनको राज्य प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार के बुद्धिमती महिलाएं भारतवर्ष में जन्म लिए हैं। आज भी भारतवर्ष में अनेक बुद्धिमती महिलाएं जन्म लेती है। भारत सरकार के द्वारा एवं राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए स्वतंत्र अनुष्ठान खोल करके उनका शिक्षा का विकास देने हेतु अनेक उपक्रम किए जाते हैं। इस प्रकार के झारखंड राज्य में प्रतिष्ठित जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज, जो कि स्वयं शासित है, अभी थोड़े दिन में वो संपूर्ण रूप में विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। शासन के द्वारा विश्वविद्यालय के रूप में उक्त संस्था को घोषित किया गया है। मुझे परम हर्ष है कि आज 2020 वर्ष में उक्त महाविद्यालय 2014 से 2018 तक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरण वर्चुअल मोड में उक्त ग्रेजुएशन डे समारोह के माध्यम से करना चाहता है। मैं इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम आभार व्यक्त करता हूँ हमारे महामहिम कुलाधिपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। कारण ये जो मुहूर्त चल रहा है, जो महामारी चल रही है, जहाँ पर सब शिथिल हो गया है और उनकी प्रेरणा से विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में समस्त गतिविधियां चल रही है, उसका ज्वलंत प्रमाण है कि आज ये महाविद्यालय जो कि विश्वविद्यालय रूप में घोषित हो चुका है, ये आज अपना ग्रेजुएशन डे मना रहा है। इसीलिए मैं सर्वप्रथम महामहिम जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ के प्राचार्य जो कि कोल्हान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुकी है, मैडम डॉक्टर शुक्ला मोहांती जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। ये अपने दल के साथ दिन रात मेहनत करके उक्त महाविद्यालय को चार चांद लगा रही है। और इसका इतिहास आपके सामने अगर नहीं कहूँगा तो मेरा भाषण पूर्ण नहीं होगा। जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज विगत 7 दशकों से गुणवत्तापूर्ण स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। वर्ष 1953 में केवल 6 छात्राओं को लेकर के यह महाविद्यालय शुरू किया गया था। स्त्री शिक्षा का यह स्वप्न आज ये परिसर में साकार होते हुए दिखाई दे रहा है। संस्था का इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए संस्थापक प्राचार्य स्वर्गीय पेरिन सी मेहता की स्मृतियों को हम नमन करते हुए वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर शुक्ला महांती एवं उनके समस्त दल को
मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। यह संस्था इतनी प्रतिष्ठित है कि भूदान आंदोलन के प्रणेता संत विनोबा भावे के पवित्र पद चिन्ह से ये पवित्र है एवं स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी गरिमामयी उपस्थिति यहाँ पर प्राप्त हुई है। और महान स्त्री गणितवेत्ता श्रीमती शकुंतला देवी का भी पद चिन्ह यहाँ प्राप्त है। इस प्रकार के इसका इतिहास में भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर यहाँ पर बंकर भी बनाया गया था और 1960 में यूजीसी के द्वारा उसको 12B के अंतर्गत ग्रहण किया गया है एवं तदुपरांत इसका मूल्यांकन न्याक के द्वारा भी किया गया है। इसको ए श्रेणी प्राप्त हुआ है। ये एक बिरला है क्योंकि ये श्रेणी प्राप्त करना किसी महाविद्यालय को बहुत कुछ करना पड़ता है और इस महाविद्यालय में इतनी शैक्षणिक गुणवत्ता है, इसको न्याक के द्वारा ये श्रेणी प्राप्त हुआ है। परवर्ती समय में 1991 में इसको 2F के अंतर्गत यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। इसके बाद प्रतिवर्ष इसमें छात्र संख्या की वृद्धि हुई है एवं समस्त यूजीसी के योजना एवं हमारे रूसा के योजना के अंतर्गत इस संस्था को आर्थिक सहायता प्राप्त होती है एवं यहाँ पर 11 विषयों में एमफिल की पढ़ाई होती है एवं पीएचडी कार्यक्रम भी चलता रहता है। इसके शिक्षा में कहा गया है केवल छात्र, जैसे कि गांधी जी ने कहा है, बाय एजुकेशन आई मीन ऑलराउंड डेवलपमेंट इन मैन बॉडी माइंड एंड सोल। यहाँ पर शारीरिक विकास के लिए खेलकूद भी होता है एवं मानसिक विकास के लिए धर्म की शिक्षा एवं नैतिक गुणों का विकास के लिए कार्यक्रम होता है एवं मानसिक विकास के लिए विज्ञान साहित्य आदि अनेक श्रृंखला में यहाँ पर अध्ययन अध्यापन होता रहता है। आज इस ग्रेजुएशन डे में वर्चुअल मोड में जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं अपने भावी देश के नागरिकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनसे उम्मीद करता हूं कि भारतीय जो महनीय परंपरा है, इस महनीय परंपरा को बजाय रखे। कभी ये मन में भावना न आए कि वो स्त्री है। ये स्त्री घर को चलाता है, मनुष्य तक पुरुष तक केवल बाहर कार्यक्रम करता है, नारी घर के अंदर एवं बाहर में काम करके ये परिवार को श्रेष्ठत्व को प्राप्त करता है। अगर यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। जब तक नारी पुरुष एकाकार होकर के ये सृष्टि रचते हैं, इसी प्रकार के शिक्षा जगत में हम लोग दोनों मिलकर चलते हैं। इस नारी शिक्षा के लिए ये एक महनीय संस्था है, ये झारखंड राज्य का गौरव है। आज इस ग्रेजुएशन डे में मैं सभी डिग्रीधारी एवं पदकधारियों को शुभकामना देता हूं। उनसे उम्मीद करता हूं ये भारतवर्ष के गौरव की रक्षा करे, इस संस्था को उज्ज्वलित करे। धन्यवाद। मैं महामहिम राज्यपाल महोदया से आग्रह करती हूं कि वे इस कार्यक्रम की ई-स्मारिका का विमोचन करने की कृपा करें। मैं मानविकी संकाय के संकाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय के संकाध्यक्ष, विज्ञान संकाय के संकाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय के संकाध्यक्ष एवं शिक्षा संकाय के संकाध्यक्ष से निवेदन करती हूँ कि वे स्नातक की वर्ष 2012-15, 2013-16, 2014-17 तथा स्नातकोत्तर की 2013-15, 2014-16, 2015-17 की परीक्षा में उत्तीर्ण उपाधि प्रापकों को प्रस्तुत करने की कृपा करें। कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष मानविकी संकाय के मुद्रित नाम वाले
उपाधि प्रापकों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया इन्हें उपाधि धारण की अनुमति दी जाए। कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष समाज विज्ञान संकाय के मुद्रित नाम वाले उपाधि प्रापकों को प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया उन्हें उपाधि धारण करने की अनुमति दी जाए। कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष विज्ञान संकाय के मुद्रित नाम वाले उपाधि प्रापकों को प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया इन्हें उपाधि धारण की अनुमति दी जाए। कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष शिक्षा संकाय के मुद्रित नाम वाले उपाधि प्रापकों को प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया इन्हें उपाधि धारण की अनुमति दी जाए। कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति के स्वनिहित अधिकारों से संकायाध्यक्ष गण द्वारा प्रस्तुत उपाधि प्रापकों को स्व अर्जित उपाधि एवं स्वर्ण पदक विजेताओं को पदक धारण करने की अनुमति प्रदान करता हूँ तथा उपदेश देता हूँ कि जीवन और आचरण में अपने को इसके योग्य सिद्ध करें। मैं महामहिम राज्यपाल महोदया से वर्ष 2015-18 की स्नातक परीक्षा एवं वर्ष 2016-18 की स्नातकोत्तर परीक्षा में उत्तीर्ण एवं स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली छात्राओं को स्वर्ण पदक एवं प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपापूर्ण अनुमति प्राप्त करती हूँ। मैं महामहिम राज्यपाल शाह झारखंड के राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से सादर निवेदन करती हूँ कि वे कृपया ग्रेजुएशन डे अभिभाषण प्रस्तुत कर हमें कृतार्थ करें। आज जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज थर्ड ग्रेजुएशन डे 2020 के इस वर्चुअल समारोह में जुड़े कोल्हान यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर गंगाधर पंडा, जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शुक्ला महंती, कॉलेज के सभी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स और मेरे प्यारे प्यारे छात्राएं और सभी संवादिक बंधुओं, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज द्वारा आयोजित थर्ड ग्रेजुएशन डे 2020 के इस वर्चुअल समारोह के अवसर पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। विगत 4 एकेडमिक सत्र में स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधियाँ प्राप्त करने वाली होनहार छात्राओं के जीवन का ये महत्वपूर्ण दिन है। अपने अध्ययन काल में परिश्रम, अनुशासन, समर्पण और लगन के साथ किए गए कार्यों का प्रतिफल आज उन्हें प्राप्त हो रहा है। ये निश्चित रूप से गर्व की बात है। उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्राओं को बधाइयाँ और एक मजबूत व्यक्तित्व के रूप में खुद की स्थापित करने के लिए आशीर्वाद। बेटियों का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षित बेटी ही शिक्षित समाज की बुनियाद होती है और शिक्षित समाज ही मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ऐसे में ये स्पष्ट है कि जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज वर्ष 1953 से ही इस राष्ट्रीय कर्तव्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान करता आ रहा है। वर्ष 2018-19 के लिए AISHE ने जो आंकड़े दिए हैं उनके अनुसार झारखंड में उच्च शिक्षा में जेंडर पैरिटी इंडेक्स राष्ट्रीय औसत की करीब है। देश का उच्च शिक्षा में जेंडर पैरिटी इंडेक्स 1.00 है और झारखंड का 0.96 है। ये एक सुखद संकेत है। मुझे कहने में प्रसन्नता हो रही है कि पिछले कुछ वर्षों में झारखंड में महिला शिक्षा में गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि हुई है। हालांकि अभी भी नारी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से के साथ काम करने की ज़रूरत है। AISHE के 2018-19 के आंकड़े के अनुसार ही देश में उच्च शिक्षा में महिलाओं का सकल नामांकन अनुपात
26.4% है और झारखंड में ये 18.7% है। पिछले 8 वर्षों में तरक्की तो हुई है, लेकिन हमारा राज्य अभी राष्ट्रीय औसत से बहुत दूर है। ऐसे में जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज जैसी नारी शिक्षा केंद्रित संस्थाओं के योगदान का ऐतिहासिक महत्व है। देश में मात्र 10.8% कॉलेज ही ऐसे हैं जो केवल लड़कियों के लिए है। अतः 1953 में केवल 6 छात्राओं के साथ शुरू हुआ ये कॉलेज आज 10,000 से अधिक छात्राओं के भविष्य को गढ़ रहा है। ये गर्व करने की बात है। बहुत जल्दी ही वुमेन्स यूनिवर्सिटी के रूप में पूरी तरह काम करते हुए ये संस्था पूरी भारत में नारी शिक्षा का मापदंड बनकर उभरेगी, ऐसे कामना करती हूँ। इस 3rd ग्रेजुएशन डे समारोह का आयोजन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हो रहा है और झारखंड का ये पहला और देश का संभवतः दूसरा उच्च शिक्षण संस्थान के जिसमें कोविड-19 के दौर की कठिन चुनौती में भी अपनी एकेडमिक निरंतरता और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेलेंस को बरकरार रखा है। ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एडमिशन करके कॉलेज ने निसंदेह एक विश्वसनीय कार्य संस्कृति विकसित की है। छात्राओं के लिए ग्रेजुएशन डे का ये दिन किसी सपने के सच होने से कम नहीं है। कॉलेज ने न सिर्फ उनके सपनों को साकार करने का प्रयास किया है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है। आज उपाधि प्राप्त करने वाली टॉपर सहित सभी छात्राओं का आह्वान करना चाहूँगी कि आप अपनी सार्थक बौद्धिक संपदा का सर्वश्रेष्ठ और रचनात्मक उपयोग करें। आपके द्वारा अर्जित ज्ञान समाज में ज्ञान का पुनः सृजन तो करे ही साथ समाज की नैतिक और चारित्रिक रूप से भी सक्षम बनाए, ऐसा प्रयास करें। यही सच्चा ज्ञान होगा और यही सच्ची गुरु दक्षिणा होगी। महिलाओं का सदियों से चला आ रहा उत्पीड़न तो भी रुकेगा जब खुद महिला इसके लिए आगे बढ़कर आवाज़ उठाएगी। आपकी शिक्षा आपको इसके लिए मानसिक संबल प्रदान करती है। खुद भी मजबूत बने और दूसरों को भी मजबूत बनाने में सहयोग दे, ये आपका प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। एक बार फिर से उपाधि प्राप्त कर रही छात्राओं को, उन्हें जन्म देने वाले और पढ़ने के लिए अवसर देने वाले माता पिता और अभिभावकों को, इन छात्राओं को ज्ञान का पवित्र दान करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को, कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर शुक्ला महंती को और इस सफल और सुंदर आयोजन के लिए समूचे कॉलेज परिवार को स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। इसी के साथ में पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे करके मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। मैं महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदया से अनुरोध करती हूँ कि वर्णित अकादमिक वर्ष में स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान करने की कृपा करें। सर्वप्रथम अकादमिक वर्ष 2012-15 की स्नातक कला संकाय की टॉपर ग्रेजुएट एवं स्वर्ण पदक विजेता सुरभि कुमारी शर्मा, होम साइंस विभाग। विज्ञान संकाय की टॉपर ग्रेजुएट एवं स्वर्ण पदक विजेता मनीषा सिंह, गणित विभाग। वाणिज्य संकाय की टॉपर ग्रेजुएट एवं स्वर्ण पदक विजेता सोनी तिवारी,
वाणिज्य विभाग। एकेडमिक वर्ष 2012-15 की ओवरऑल बेस्ट ग्रेजुएट एवं स्वर्ण पदक विजेता सोनी तिवारी, वाणिज्य संकाय। एकेडमिक वर्ष 2013-16 स्नातक कला संकाय की टॉपर ग्रेजुएट एवं स्वर्ण पदक विजेता कस्तूरी सेन, अर्थशास्त्र विभाग। विज्ञान संकाय की टॉपर ग्रेजुएट एवं स्वर्ण पदक विजेता अनुभा कुमारी, गणित विभाग। वाणिज्य संकाय की टॉपर ग्रेजुएट एवं स्वर्ण पदक विजेता हनी कुमारी, वाणिज्य विभाग। एकेडमिक वर्ष 2013-16 की ओवरऑल बेस्ट ग्रेजुएट एवं स्वर्ण पदक विजेता हनी कुमारी, वाणिज्य संकाय। एकेडमिक वर्ष 2014-17 स्नातक कला संकाय की टॉपर ग्रेजुएट एवं स्वर्ण पदक विजेता निधि कुमारी, म्यूजिक विभाग। विज्ञान संकाय की टॉपर ग्रेजुएट एवं स्वर्ण पदक विजेता मीनू कुमारी, गणित विभाग। वाणिज्य संकाय की टॉपर ग्रेजुएट एवं स्वर्ण पदक विजेता मनीषा कुमारी, वाणिज्य विभाग। एकेडमिक वर्ष 2014-17 की ओवरऑल बेस्ट ग्रेजुएट एवं स्वर्ण पदक विजेता मनीषा कुमारी, वाणिज्य संकाय। एकेडमिक वर्ष 2015-18 स्नातक कला संकाय की टॉपर ग्रेजुएट एवं स्वर्ण पदक विजेता संचिता सरकार, बांग्ला विभाग। विज्ञान संकाय की टॉपर ग्रेजुएट एवं स्वर्ण पदक विजेता पायल धवन, गणित विभाग। वाणिज्य संकाय की टॉपर ग्रेजुएट एवं स्वर्ण पदक विजेता सगुप्ता फातिमा, वाणिज्य विभाग।
एकेडमिक वर्ष 2015-18 की ओवरऑल बेस्ट ग्रेजुएट एवं स्वर्ण पदक विजेता पायल धवन, गणित विभाग। मैं महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदया से वर्णित अकादमिक वर्षों में अन्य टॉपर्स एवं उपाधि प्रापकों को स्वर्ण पदक एवं उपाधि प्रदान करने के लिए माननीय कुलपति महोदय एवं प्राचार्य महोदया को अधिकृत करने की कृपापूर्ण अनुमति प्राप्त करती हूँ। Subject wise toppers BA Honours Batch 2012-15 Economics Rituparna Chaudhary। English करिश्मा आनंद। ज्योग्राफी दीक्षा राय। हिंदी विश्वासी बोधरा। हिस्ट्री दिव्या गुप्ता। होम साइंस सुरभि कुमारी शर्मा। म्यूजिक कुमारी अंगना बैनर्जी। फिलॉसफी श्रुति सिन्हा। पॉलिटिकल साइंस रोहिता। साइकोलॉजी ऋतु कुमारी। उर्दू नीलोफर अंसारी। BSc Honours Batch 2012-15 Botany कुमारी अरुणा। केमिस्ट्री मौसमी आचार्य। मैथ्स मनीषा सिंह। फिजिक्स लक्ष्मी कुमारी। ज़ूलॉजी कमला रानी महतो। BCom Honours Batch 2012-15
सोनी तिवारी। Subject toppers post graduation MA batch 2013-15 Bengali Sunanda Mahapatra। Economics गीतिका सिंह। इंग्लिश जैस्मिन मैकार्डी। ज्योग्राफी निर्मला स्टेला कुल्लू। हिंदी पूजा कुमारी प्रसाद। हिस्ट्री लक्ष्मी कुमारी। होम साइंस परवीन बानो। म्यूजिक नवमिता शिल। पॉलिटिकल साइंस शालू सिंह। साइकोलॉजी खुशबू शर्मा। संस्कृत लवली कुमारी। सब्जेक्ट टॉपर MSc बैच 2013-15 बॉटनी रूही। केमिस्ट्री अनीता दास। ज़ूलॉजी निवेदिता। MCom बैच 2013-15 टॉपर अनामिका प्रियदर्शिनी। बैच 2013-16 बंगाली सुष्मिता मैती। इकोनॉमिक्स कस्तूरी सेन। इंग्लिश अबीरा बासक। ज्योग्राफी प्रिया बारिक। हिंदी सोनाली दास। हिस्ट्री दीक्षा दास।
होम साइंस प्रीति कुमारी झा, म्यूजिक रीता कुमारी, फिलॉसफी नेहा कुमारी, पॉलिटिकल साइंस आयुषी कुमारी, साइकोलॉजी सुरभि कुमारी, उर्दू शाहला जामिल, Subject topper graduates BSc Honours Batch 2013-16 Botany Pallavi Sanjeev, Chemistry Priyanka Kumari, Maths Anubha Kumari, Physics Farida Parveen, Zoology हर्षिता अग्रवाल, सब्जेक्ट टॉपर बीकॉम ऑनर्स बैच 2013-16 हनी कुमारी, Subject toppers post graduates MA batch 2014-16 Bengali, Baby Shaw, Economics Alisha Rachel Lakra, Economics Ankita Kumari, Economics Pooja Datta, English Lopa Das, Geography Babita Kumari, हिंदी विजया कुमारी रे, हिस्ट्री शिल्पी तिवारी, हिस्ट्री नेहा कुमारी, होम साइंस अनुपमा गुप्ता, फिलॉसफी नेहा चौरसिया,
Political Science Vidisha Verma. Psychology Nidhi. Sanskrit Shivangi Kumari. Urdu Shagufta Parveen. Subject topper post-graduation MSc batch 2014-16. Preeti Singh. Chemistry Shaheen Azad. Zoology Shioli Biswas. Subject topper MCom batch 2014-16 Ruqayya Beg. Subject topper graduate BA Honours batch 2014-17 Bengali Shioli Manna. Economics Shweta Kumari. English Gulista Javed. Geography Shilpi Hazra. Hindi Mona Nag. History Amrita Singh. Home Science Archana Kumari. Music Nidhi Kumari. Philosophy Ansua Mahato. Political Science Mamoon Roy. Psychology Moni Vig. Urdu Sanchita Manna. Subject topper graduate BSc Honours batch 2014-17 Botany Deepika Kumari. Chemistry Ipsita Ghosh. Maths Meenu Kumari. Physics Guddi Acharya. Zoology Jasmine Marianne Poor. Subject topper graduate BCom Honours batch 2014-17
Commerce, Manisha Kumari. अकादमिक वर्ष 2015 से 17 कला संकाय स्नातकोत्तर टॉपर्स हैं बंगाली अनामिका घोष। दो 2015 से 17 इकोनॉमिक्स आशा किरण कुजूर। दो 2015 से 17 इंग्लिश चित्रांश ऋचा प्रिया। 2015 से 17 ज्योग्राफी झरना महतो। दो 2015 से 17 हिंदी विश्वासी बोदरा। 2015 से 17 हिस्ट्री दानगी टुडू। 2015 से 17 होम साइंस सुरभि कुमारी शर्मा। 2015 से 17 म्यूजिक निवेदिता मोंडल। 2015 से 17 फिलॉसफी प्रीति कुमारी मंडल। 2015 से 17 पॉलिटिकल साइंस नेहा परवीन। 2015 से 17 साइकोलॉजी दिशा कुंडू। 2015 से 17 संस्कृत इंदु कुमारी। 2015 से 17 उर्दू नूरी बेगम। 'अकादमिक वर्ष 2015 से 17 विज्ञान संकाय स्नातकोत्तर टॉपर्स बॉटनी जैनाब तबस्सुम। 2015 से 17 केमिस्ट्री मौसमी आचार्य।
2015 से 17 मैथमेटिक्स सोनाली रॉय। दो 2015 से 17 जूलॉजी सबा सुल्ताना। अकादमिक वर्ष 2015 से 17 वाणिज्य संकाय स्नातकोत्तर टॉपर, विषय FM काजल कुमारी। अकादमिक वर्ष 2015 से 18 स्नातक टॉपर्स, बंगाली संचिता सरकार। दो 2015 से 18 इकोनॉमिक्स सुतोपा दत्ता। दो 2015 से 18 इंग्लिश ऐश्वर्या झा। दो 2015 से 18 ज्योग्राफी शांति बेसरा। दो 2015 से 18 हिंदी गायत्री महतो। दो 2015 से 18 हिस्ट्री प्रीति रॉय। दो 2015 से 18 होम साइंस नीलम कुमारी। दो 2015 से 18 मैथमेटिक्स रीना महतो। दो 2015 से 18 म्यूजिक शकुंतला मुर्मू। दो 2015 से 18 फिलॉसफी सीता मुर्मू। दो 2015 से 18 पॉलिटिकल साइंस वर्षा तिवारी।
2015 से 18 साइकोलॉजी गुलफ्सा परवीन। 2015 से 18 संस्कृत मीता कुमारी। 2015 से 18 उर्दू हरम मारिया। 'अकादमिक वर्ष 2015 से 18 स्नातक विज्ञान टॉपर्स। बॉटनी झरना आचार्य। 2015 से 18 केमिस्ट्री पूजा कुमारी। 2015 से 18 मैथमेटिक्स पायल धौन। 2015 से 18 फिजिक्स श्वेता सतपति। 2015 से 18 जूलॉजी अनन्या घोष। 'अकादमिक वर्ष 2015 से 18 स्नातक वाणिज्य टॉपर सगुफ्ता फातिमा। 'अकादमिक वर्ष 2016 से 18 स्नातकोत्तर कला संकाय टॉपर्स। इकोनॉमिक्स कस्तूरी सेन। 2016 से 18 इंग्लिश किश्वर सुल्ताना। 2016 से 18 ज्योग्राफी ऋषा रे। 2016 से 18 हिंदी स्मिता लहरी। 2016 से 18 हिस्ट्री खुशबू पांडे। 2016 से 18 हिस्ट्री ट्विंकल कुमारी। 2016 से 18 होम साइंस स्मृति ओझा। 2016 से 18 फिलोसफी
नेहा कुमारी। दो 2016 से 18 पॉलिटिकल साइंस काजल कुमारी। दो 2016 से 18 साइकोलॉजी सुरभि कुमारी। अकादमिक वर्ष 2016 से 18 स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय बॉटनी पल्लवी संजीव। दो 2016 से 18 केमिस्ट्री प्रियंका कुमारी। दो 2016 से 18 जूलॉजी जागृति तिवारी। अकादमिक वर्ष 2016 से 18 स्नातकोत्तर वाणिज्य संकाय विषय FM संताना दास। अब मैं हिंदी विभागाध्यक्ष एवं विद्वत परिषद के सदस्य सचिव डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह से आग्रह करती हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापित करने की कृपा करें। सर्वप्रथम मैं जमशेदपुर विमेंस कॉलेज के इस तृतीय ग्रेजुएशन डे समारोह के वर्चुअल आयोजन में अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कृतार्थ करने वाली महामहिम राज्यपाल सह झारखंड के राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं और पूरी श्रद्धा के साथ कॉलेज परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। महामहिम हमेशा की तरह अपने स्नेह की वर्षा से इस महाविद्यालय प्रांगण और परिवार को सींचती रही हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं कि कुलाधिपति महोदया का यह आशीष हम पर सदा बना रहे। हमारे अभिभावक, हमारी पितृ संस्था कोल्हान विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर गंगाधर पांडा जी के प्रति हम सभी श्रद्धावनत हैं। संस्कृत और प्राच्य विद्या के निष्णात विद्वान व स्नेहिल प्रशासक माननीय कुलपति जी ने इस वर्चुअल आयोजन में हमारा मार्गदर्शन किया और हर स्तर पर सहयोग करके हमारी राहों को आसान बनाया। माननीय कुलपति जी के अनुभव से हमारी संस्था सदैव उपकृत है और उनका हृदय से धन्यवाद करती है। मैं इस पूरे आयोजन की निर्माता, निर्देशक और मेजबान आदरणीय प्राचार्य व कोल्हान विश्वविद्यालय की माननीय पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला महंती जी के प्रति धन्यवाद के जितने शब्द कहूँ वे कम ही पड़ जाएंगे। इस आयोजन के जरिए मैडम ने हम सभी के बीच कर्तव्य निष्ठा जगाई, ऊर्जा का संचार किया और एक विचार को वास्तविकता में बदल दिया। दिन रात इस संस्था के शिक्षक शिक्षिकाओं, शिक्षकेतर कर्मियों और छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए अथक काम करने वाली मातृतुल्य आदरणीय प्राचार्य का हम सभी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपसे हमने हर बार कुछ न कुछ नया सीखा है। हम सभी की यह सदिच्छा है कि आपके नेतृत्व में यह संस्था निरंतर नई नई बुलंदियों को स्पर्श करती जाए। ग्रेजुएशन डे समारोह में अपना बहुमूल्य योगदान देने के लिए मैं संकायाध्यक्ष
छात्र कल्याण डॉक्टर ग्लोरिया पूर्ति जी, संकायाध्यक्ष मानविकी डॉक्टर सुधीर कुमार साहू जी, संकायाध्यक्ष समाज विज्ञान डॉक्टर सबीहा यूनुस जी, संकायाध्यक्ष विज्ञान डॉक्टर जावेद अहमद जी, संकायाध्यक्ष वाणिज्य डॉक्टर दीपा शरण जी को बार बार धन्यवाद देता हूँ। विगत 4 अकादमिक सत्रों की स्नातक और स्नातकोत्तर की छात्राओं को यथानुसार उपाधि, स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की इस संकल्पना को मूर्त रूप देने में खामोशी के साथ लगातार बिना रुके, बिना थके और हमेशा चेहरे पर एक दिव्य आभा लिए काम करते रहने वाली हमारे कॉलेज की आदरणीय परीक्षा नियंत्रक व शिक्षा संकायाध्यक्ष डॉक्टर रमा सुब्रमण्यम के प्रति हम सब आभारी हैं। आदरणीय प्रिंसिपल मैम के साथ उनकी तीव्र और क्षिप्र कार्यशैली के अनुषंग में डॉक्टर सुब्रमण्यम मैडम ने अथक परिश्रम किया है। इसका प्रमाण यह सफल आयोजन है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैडम डॉक्टर रमा के नेतृत्व में दिन रात एक करके काम करने वाली परीक्षा विभाग की पूरी टीम, सह परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर रूपाली घोष, डॉक्टर ग्लोरिया पूर्ति, डॉक्टर सनातन दीप और सभी सहयोगी कार्यालय कर्मियों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए धन्यवाद देता हूँ। मैं इस अवसर पर सभी विभागाध्यक्षगण और विभागीय शिक्षक शिक्षिकाओं, वोकेशनल पाठ्यक्रमों के समन्वयकगण, घंटी आधारित शिक्षक शिक्षिकाओं, शिक्षा संकाय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, सभी संविदा शिक्षक शिक्षिकाओं, सभी अतिथि शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रति भी कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी के तत्पर और आत्मीय सहयोग से कार्यक्रम की यह भव्य फलश्रुति हुई है। ग्रेजुएशन डे समारोह की आयोजन समिति के सभी सदस्यगण की कर्तव्य निष्ठा को प्रणाम करते हुए उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह पूरा आयोजन जिनके लिए था, जिनकी वजह से था, यानी हमारी होनहार छात्राएं, मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से अपनी प्रतिभावान छात्राओं और उनके अभिभावकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपनी संतानों को ऐसे संस्कार दिए हैं कि उनके साथ साथ हम शिक्षक शिक्षिकाएं भी आज गौरवशाली क्षण के गवाह बन सके हैं। मैं इस कॉलेज परिवार की रीढ़ की हड्डी यानी अपने सभी शिक्षकेतर कर्मियों, भाइयों और बहनों के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण के प्रति सिर झुकाता हूं और उनके अकथनीय सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। प्रधान सहायक श्री विश्वंभर यादव जी के नेतृत्व में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के सभी साथियों, संविदा कर्मियों ने इस आयोजन में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। सबके प्रति बारंबार आभार। कॉलेज की टेक्निकल टीम श्री बी विश्वनाथ राव, ज्योति प्रकाश महंती, तपन कुमार मोदक, के प्रभाकर राव, रोहित विश्वकर्मा, शौरिश कुंडू सहित तमाम साथी कर्मियों का योगदान शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उन्हें धन्यवाद करता हूं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। आईआईटी बॉम्बे के उस होनहार युवा ब्रिगेड के प्रति बार बार महाविद्यालय परिवार धन्यवाद ज्ञापित करता है, जिनके न होने से यह आयोजन संभवतः वैसा न होता जैसा हुआ। खत्री जी, प्रणव जी और उनकी पूरी टीम के प्रति हम कृतकृत्य हैं कि दिल्ली से सड़क मार्ग की लंबी यात्रा करके इस पूरे आयोजन को वर्चुअली सक्सेसफुल बनाने के लिए एक्चुअल फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस उन्होंने सहे हैं और खामोश योद्धाओं के दल की तरह समर्पित भाव से काम करते रहे हैं। टीम नूडो फिल्म्स को बार बार धन्यवाद। और अंतिम बात, लेकिन जो अंत नहीं है, कि हम सभी ने इस दौरान एक दूसरे से सीखा है और एक दूसरे की यूनिक एबिलिटी से परिचित हुए हैं। मैडम प्रिंसिपल के नेतृत्व में एक टीम के रूप में हम सब और सशक्त बने हैं। इस स्पिरिट को बरकरार रखना है। आगे एक बड़ा दायित्व हम सबके सामने खड़ा है। मैडम के नेतृत्व में हमें जमशेदपुर विमेंस विश्वविद्यालय को शिखर तक ले जाना है। इसलिए यह अंत नहीं, आरंभ है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का एक बार फिर से। हम सभी अब राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े होंगे।
जन गण मन अधिनायक